Okay, let's start. What we studied in the last class is uniformly accelerated motion in a straight line. Uniformly accelerated motion in a straight line means uniformly accelerated motion in a straight line. What does it mean? The object is going in a straight line and it has some acceleration a. So that is what uniformly accelerated motion. The acceleration is constant throughout the motion, right? So if the object is started from speed u and at any time t the speed is v and it is covered as distance s, so we have three equations of motion. What are those? V is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at square, and third v square minus u square is equal to 2as. These are the three equations of motion which we had already studied in 9th class. Okay, so that is what these are conditional equation. And what is the condition? Uniformly accelerated motion in a straight line. Okay, now then we studied motion in gravity. Motion in gravity. And definitely we were talking about straight line motion in gravity. Straight line motion. Straight line motion in gravity. What is there? इसमें हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया. That all is happening in this motion. So what we take instead of distance s, in place of s we take the height h, and the acceleration in this case is equal to acceleration due to gravity. So we can rewrite the equations. How we can write the equations? V is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square, and v square minus u square is equal to 2gh. So these are the equations when the motion is in gravity. Anybody want to ask anything up till here? किसी को भी कुछ भी पूछना है यहाँ तक? नहीं. All done? आगे चलें? Okay. So now if we talk about motion in gravity, you will do with your common sense. अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे रिटार्डेड मोशन है और उस टाइम में g को नेगेटिव ले लेंगे, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वी विल से एक्सेलरेटेड मोशन है और g को पॉजिटिव ले लेंगे. दैट्स सो सिंपल द थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली वी विल वर्क, राइट. तो जो लोग लेट आए उनके लिए मैं बता देता हूं. एक क्वेश्चन किया, राइट, एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? An object dropped from a height. An object dropped from a height. It traveled distance in last 3 second, in first 3 second. It travel distance in
first 3 seconds as in last 1 second. Right? And we have to find, what we need to find is we have to find time taken by object to reach ground. Time taken by object to reach ground. देखो, फर्स्ट थिंग, हम किस तरह से काम करना चाहिए. फिजिक्स मीन्स न्यूमेरिकल्स मैटर्स अ लॉट. जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं. ओके, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिजिक्स में अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यू नीड टू ऑब्जर्व मी हाउ आई एम डूइंग. इनिशियली आप लोग नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे, बट ड्यूरिंग दैट कोर्स यू नीड टू ऑब्जर्व मी कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ. ओके, एंड देन ट्राई टू फॉलो दैट, उसको फॉलो करने की कोशिश करो. तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ फिगर. सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन. तो मान लो ये एक पॉइंट है ए, कुछ हाइट पे, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया. वंस इट ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो वन पैरामीटर वी नो बाय द वर्ड ड्रॉप्ड. तो वी कैन राइट u इज इक्वल टू 0 and then it is moving. Now this is the time t is equal to 3, क्योंकि what we want to know is first 3 सेकेंड. तो first 3 सेकेंड तो यही होंगे. तो first 3 सेकेंड में इसने कुछ डिस्टेंस चला, कितना, h0. फर्स्ट 3 सेकेंड में h0 डिस्टेंस ट्रेवल किया. राइट? तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम बड़े आराम से. कैसे? h0 इज इक्वल टू, u तो 0 हो गया, टाइम 3 प्लस हाफ, g को हम 10 ले लेते हैं, इंटू 3 स्क्वायर, इंटू 3 स्क्वायर. सो दिस इज 45 मीटर. तो फर्स्ट 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 45 मीटर. यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? नहीं. देयर आर न्यू स्टूडेंट समृद्धि एंड जिया. राइट? समृद्धि एंड जिया, डिड यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? ओके. सो नाउ अब आगे चलते हैं. दिस फर्स्ट 3 सेकेंड इज इक्वल एज इन लास्ट सेकेंड. तो अगर ये ग्राउंड है तो ये लास्ट सेकेंड होगा, ये लास्ट सेकेंड होगा. सो दिस इज द डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड एंड हाउ मच इज इट? इट इज सेम एज h0. So this distance is also same, h0. Right? Now अब हमको निकालना है टोटल टाइम. तो let's say this is position A, this is position A, this is position B, and this is position C. And what we assume, this whole height is h. तो how much is that? ये कितनी बची? h minus h0. Right? Now let's suppose this is the time t जो हमें कैलकुलेट करना है. ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर ये टाइम t है तो ये टाइम कितना है? ये वाला टाइम a से b तक का, बोलो.
t minus 3. How it is t minus 3? ये last second है. This is what? Last second. And when we are saying last second means तो 1 second ना. तो last second is 1 second. पूरा टाइम t है, उसमें से लास्ट सेकेंड कम होगा तो 1 सेकेंड ही कम होगा ना. 1 सेकेंड कम हुआ तो ये कितना आएगा टाइम? t माइनस 1. तो ये टाइम होगा t माइनस 1. इज इट क्लियर? और सर पर हम ये भी ले सकते हैं ना सर, हमें वो भी पता है कि ए से जहाँ तक हमने रिकॉर्ड किया था जो टाइम 3 सेकेंड है हम वो भी तो ले सकते हैं. हाँ, वो ये वाला टाइम लेंगे, फिर इसके नीचे करेंगे तो हमें एक्चुअली यहाँ पे स्पीड्स वगैरह नहीं मालूम है. ओके, मैं बताता हूँ बाकी का हम क्यों नहीं कर रहे हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं. ओके, पहले इसको लो. राइट. तो अगर मैं यहां तक लूं तो ये h माइनस एच नॉट और ये टाइम t माइनस 1. इसमें किसी को डाउट है? नहीं. किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलो. जब है तभी साथ साथ बोलते रहना. एंड गौरी यू आर लेट, तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा. ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसके बाद समझ में आएगा. ओके गौरी? राइट. इतना सबको समझ में आया? रिया, हर्षित, स्पर्श? राइट. सो अब हम क्या करेंगे? देखो, मेरी हमेशा कोशिश रहती है शुरुआत वाले पॉइंट से काम करने की. वाई? क्योंकि इस पॉइंट पे एक चीज मुझे रेडीली अवेलेबल है, दैट इज व्हाट u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी. अगर मैं बीच में कहीं भी काम करता हूं तो मुझे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है. एनीवे फर्दर डिटेल में बताता हूं. अभी एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. सो इफ आई टेक मोशन A to B and we will use the same equation. Which one? H is equal to ut plus half gt square. ये इक्वेशन यूज करेंगे A से B तक. तो A से B तक हाइट कितनी है? h minus 45, बिकॉज h नॉट इज 45, ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, h माइनस 45 एंड बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम t माइनस 1 है, तो एंड प्लस हाफ g t माइनस 1 स्क्वायर. ओके, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो h माइनस 45 इज इक्वल टू g को 10 ले ले, हाफ इंटू 10 एंड दिस इज t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. ओके, सो दिस इज 2 5 j 10, तो h माइनस 45 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5. ओके, इतना ठीक है? 45 उधर ले जाते हैं तो h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. होप सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, अब करते हैं मोशन A to C. So if I do motion A to C and I will use this same equation, h is equal to ut plus half gt square. तो A से C तक हाइट कितना है? h और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, टाइम t प्लस हाफ, g को मैं सीधे 10 लिख रहा हूं एंड t स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर.
ये h की वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं, डाल दूं? तो h की वैल्यू अगर मैं यहां प्लेस करता हूं तो दिस विल बिकम 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50. 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट विल कम एज 10t प्लस 10t इज इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू 5, राइट? अब इस क्वेश्चन में पूछो, आपको किसी को कुछ भी पूछना है तो चलो, दिस क्वेश्चन इज ओवर. नाउ आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स. Keep noting down and keep understanding them. That will help you to solve a lot of questions, right? तो स्टार्ट करते हैं. The first is, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया. हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया. ये हमने इसको ऊपर थ्रो किया इस पॉइंट से. ऊपर थ्रो किया तो ये नीचे भी आएगा. एग्रीड? तो ये नीचे भी आ गया और सेम रास्ते से नीचे आएगा. हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम कुछ चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं. व्हाट इज आवर मेन अजम्पशन? दैट only force is gravitational force. Only force is gravitational force. That is, resistance of medium is neglected. Resistance of medium is neglected. यानी मीडियम का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. मीडियम का रेजिस्टेंस ना होने से क्या होता है कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट. आप लाइट ऑब्जेक्ट को गिराओ या हैवी ऑब्जेक्ट को गिराओ, बोथ विल टेक इक्वल टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड. ऐसा हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. ओके, तो ये कब होती है कंडीशन? जब हम मीडियम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं. बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं ना तो ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली हम एक पत्थर को गिराते हैं और एक ट्री लीव को गिराते हैं तो ट्री लीव लेट पहुंचती है, पत्थर जल्दी पहुंच जाता है. वो किस वजह से होता है? उसमें ग्रेविटी की वजह से नहीं होता, वो हवा का जो रेजिस्टेंस होता है उस वजह से होता है. तो हम जब इस चैप्टर में हम काम कर रहे होते हैं तो हम बाकी सारे फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ एक ही फोर्स है and that force is gravitational force, right? तो ये हमारी मेन एजम्पशन है कि पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही फोर्स है and that is what? Gravitational force, right? So now let's start. हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से u वेलोसिटी से थ्रो किया. ओके, तो it will return with velocity u. जिस वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से हमारे पास वापस आएगा. ओके, तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में एक होगा कि जब हमारे हाथ में था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो जब हम थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. तो ऐसा नहीं होता. ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. देखो, ये मेरे हाथ में फोन रखा है. ओके, एंड इसकी वेलोसिटी 0 है. अब मैं इसको बोलूं तू ऊपर जा, तो ये जाएगा? अच्छा, ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ हमें स्पीड देनी पड़ेगी, राइट? तो हम स्पीड कैसे देते हैं? हम ऐसे करके ऐसे ऊपर हाथ ले जाते हैं. इज इट? जब हम थ्रो करते हैं तो हम ऐसे करके ले जाते हैं. तो जब हम ऐसे करके लेके जाते हैं तो जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट हमारा हाथ से निकलता है,
जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से निकला, हम वहां से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हम ये वाला पोर्शन कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है। जब वो इस तरह से हमने मूव किया, हम कहाँ से शुरू करेंगे? जब ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, और जब ऑब्जेक्ट हमारे ऐसा हाथ से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इज इट? तो पहली चीज, कभी भी ऑब्जेक्ट हम अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। फिर बाद में जब वो वापस आएगा, जब वापस आएगा तो भी उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, जब वापस आएगा तो भी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। कितनी होगी? जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था। अब आपके दिमाग में ये कौन से क्वेश्चन आएगा? आके तो रुक जाता है? नहीं, वो रुकता, जब रुकेगा तो है ही फाइनली, लेकिन हम कहाँ तक काउंट करेंगे? जब वो आके हमारे हाथ से टच हुआ। अब उसके बाद हमारा हाथ उस पर फोर्स लगाएगा और वो रुक जाएगा। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। जिस वेलोसिटी से, मैं बाद में ये सब पॉइंट्स नोट कराऊंगा, है ना? अभी एक बार समझते रहो। जिस वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से वो वापस आएगा। एग्रीड? राइट। अब मान लो वो बीच में किसी पॉइंट से पास हुआ, बीच में किसी पॉइंट से पास हुआ, ए पॉइंट, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v थी, v1 मान लो, उसकी वेलोसिटी v1 थी। तो जब वो वापस आएगा, जब वापस आएगा तो इसी पॉइंट पे वेलोसिटी दोबारा से फिर v1 ही होगी। ओके? नाउ if we take another point B, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो ये जब इस पॉइंट पे वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी v2 ही होगी। राइट? सो दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग। वो पूरे रास्ते में जिस पॉइंट को जिस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, वापस आते हुए भी उस पॉइंट पे वही वेलोसिटी होगी। राइट? स्पीड, सॉरी। हाँ, एक्सेलरेशन तो क्योंकि ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए सेम ही है। ऊपर जब जा रहा है तो वो रिटार्डेशन है, और जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन है, बट है तो 10 ही। हाँ सर, पर मतलब सर हमें पता है कि F इज इक्वल टू mq। तो सर हमारा मास तो कांस्टेंट है क्योंकि वो बॉडी तो वैसी है, पर हमने बहुत ज्यादा फोर्स कराएंगे तो वही रहेगा ना सर। पर अच्छा, नीचे जब फोर्स आ रहा है तो वो उतना फोर्स कैसे लग सकता है उसको? नहीं, एक्चुअल में क्या है, देखो, फोर्स कब तक लग रहा है? जब तक वो हमारे हाथ में है। एक बार हाथ से निकल के हवा में चला गया तो फिर हमारा फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स सिर्फ तभी तक है जब तक वो हमारे हाथ में है, और या तब लगेगा जब हाथ में वापस आएगा। बट जब वो हमारे हाथ में नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका एक्सेलरेशन फिक्स है, दैट इज 10। तो बीच में कहीं कोई फोर्स नहीं है। हम चाहे कितनी भी फोर्स से फेंकें, कितनी भी फोर्स से फेंकें, बट एक बार हमारे हाथ से निकला तो फोर्स खत्म। राइट? ठीक है मैत्रेय? यस सर। राइट। सो दैट इज वन थिंग, दैट ऊपर जाते हुए जिस वेलोसिटी से जाएगा, जिस स्पीड से जाएगा, वापस आते हुए उसी स्पीड से वापस आएगा। राइट? So that is first point you need to remember. Okay, let's write that. When an object is thrown upward, when an object is thrown upward,
then during return it passes every point with same speed as during upward motion at that point. यानी अपवर्ड मोशन में उस पॉइंट पे जो स्पीड थी वापस आते हुए भी उस पॉइंट पे वही स्पीड होगी. ओके ठीक है बच्चों. Yes, sir. Right. Now the second thing. मान लो यहां से यहां तक का टाइम ऊपर जाते हुए t1 है. कहां से कहां तक? ये ग्राउंड से a तक का टाइम. तो टाइम फ्रॉम ग्राउंड टू a इज t1. तो वापस आते हुए भी उतना ही टाइम लगेगा. मीन्स टाइम फ्रॉम a टू ग्राउंड विल बी t1 ऑल्सो. यानी ये टाइम भी t1 ही होगा. ठीक है. जितना टाइम अपवर्ड मोशन में लगता है उतना ही टाइम डाउनवर्ड मोशन में लगेगा. इफ आई से इस पोर्शन में टाइम t2 है तो वापस आते हुए b टू a भी टाइम t2 ही होगा. दैट मीन्स टाइम b टू a t2 है तो टाइम a टू b भी t2 होगा. ओके यानी अपवर्ड जर्नी में बिटवीन एनी टू पॉइंट जितना टाइम लगता है डाउनवर्ड जर्नी में भी बिटवीन दोज टू पॉइंट सेम टाइम लगेगा. राइट राइट. सो लेट्स नोट इट डाउन. Second point, time taken by object between 2 points, between any 2 points, है ना? Time taken by object between any 2 points in its path is same during upward and downward motion. Upward and downward motion. Right? कोई भी दो पॉइंट लो, ऊपर जाते हुए उन दो पॉइंट में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आते हुए उन दो पॉइंट में लगेगा. राइट? गौरी समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट. एंड दिस जिया, समृद्धि. Yes, sir. ओके. ठीक है, ये नोट करते जाओ. अभी मैं बताऊंगा इनसे क्वेश्चन करने में कितना ईज मिलता है. ठीक है. फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और हमको वही सीखना है. थ्योरी तो आप लोग याद कर लोगे बड़े आराम से, बट मेरा काम है आपको ग्रो करना टू दैट एक्सटेंट दैट यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग. आप लोग सब कुछ कर पाओ. ये नोट हो गया? Yes, sir. ओके. राइट. ना एक कोई भी मोशन लो,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है एंड द मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. ओके, मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. तो ये हम कोई टाइम इंटरवल लेते हैं, t, देन 2t, देन 3t, देन 4t. यानी यहां से यहां तक का टाइम t, यहां से यहां तक का टाइम 2t, यहां से यहां तक का 3t, यहां से यहां तक का 4t. आप t की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपको. मैं वेरिएबल में काम करूंगा तो फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंचूंगा. आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो. मान लो इफ समवन सेज लेट मी टेक t इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12. बट इन जनरल व्हाट आई मीन इज ये टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल इंटरवल चाहिए मुझे. अंडरस्टूड? वो इंटरवल 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी हो सकता है, 3 सेकेंड भी हो सकता है, 10 सेकेंड भी हो सकता है, 50 सेकेंड भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई टुक t. अब हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, राइट? कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. ये डिस्टेंस सपोज s1 है, ये डिस्टेंस सपोज s2 है, ये s3 है और ये s4 है. तो पहले s1 कैलकुलेट करते हैं. हम इक्वेशन यूज करेंगे कौन सी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब u तो 0 हो गया, तो व्हाट वी कैन राइट? s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. तो हम सीधे सीधे ये यूज करेंगे s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और हम सारी कैलकुलेशन a पॉइंट से शुरू करेंगे. एंड देखते हैं ना, फाइनली वी विल रीच टू अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे पहुंचेंगे. फिजिक्स में जो खासियत है ना, सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होती है. बस हमको उन सिमिलैरिटीज को पकड़ने की ज़रूरत है. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली बट हो जाता है. तो s1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. एग्रीड? देन ये ए टू बी है, फिर ए टू सी, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 कितना हो गया? हाफ ए इंटू 2t स्क्वायर. तो ये हो गया 2a t स्क्वायर. अब मुझे s2 चाहिए, तो s1 कितना था? हाफ ए टी स्क्वायर प्लस s2 इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर. तो s2 कितना आ गया? 3/2 a t स्क्वायर. सेकेंड, समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलो. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? ए टू डी. s1 प्लस s2 प्लस s3 कितना हुआ? हाफ ए इंटू 3t स्क्वायर, दैट इज 9/2 a t स्क्वायर. और s1 प्लस s2 कितना आया था? 2a2 स्क्वायर. तो 2a t स्क्वायर प्लस s3 इज इक्वल टू 9/2 a t स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 5/2 a t स्क्वायर. 5/2 a t स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा थर्ड s3 है ये, है ना? अब एक और रह गया, उसके बाद हम एक कंक्लूजन कर लेंगे. तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4, हाफ a इंटू 4t स्क्वायर, दैट इज 16/2 8a t स्क्वायर. अच्छा, s1 प्लस s2 प्लस s3 कितना था?
9/2 है ना, तो ये 9/2 AT² प्लस S4, तो S4 इज इक्वल टू 8AT² माइनस 9/2 AT², so that is 7/2 AT². These were simple calculations जो कि आई फील सबको समझ में आ गई होगी. अगर किसी को नहीं आई हो तो बताओ. हो गया सबका. अब अगर हम रेशो देखें इसका तो क्या आता है? 1, 3, 5, 7 और आगे आ जाएगा कितना? हाँ, यहां पे देखो हाफ AT², हाफ AT², ये कितना हुआ? 3/2, तो ये 1:3 रेशो हो गया. ये 5/2 तो 5 हो गया, और ये 7/2. ठीक है, पहला वाला 1 into हाफ AT², दूसरा वाला 3 into हाफ AT², तीसरा वाला 5 into हाफ AT², चौथा वाला 7 into हाफ AT². राइट? तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं वो एक रेशियो में होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. बट व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए. दैट इज द कंडीशन. राइट? तो ये नोट लिखोगे? अब मैं बोलूं? If an object start from rest and move in a straight line with uniform acceleration, then distances covered in equal time interval, ये टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इन रेशो 1:3:5:7 and so on. So that is one more result we get. So these are the 3 results we get. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं एंड यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन कैसे भी, जैसे तुम्हारा मन करे. ठीक है, जैसे भी तुम्हारा मन करे वैसे उसको सॉल्व करना है. ओके, ये नोट आ जाए तो बताना. हो गया? हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ हो तो बोलो. सर एक सेकंड. हाँ, यस सर, हो गया. हो गया. राइट. An object thrown upward passes the same point at 7 seconds and 15 seconds. An object thrown upward passes the same point at 7 seconds and 15 seconds. Find the velocity
with which object was thrown. Find the velocity with which object was thrown. That's so simple question. Take your time. जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो. एंड जी की वैल्यू 10 ले लेना. चलो मैं करता हूं. एक चीज देखो, इक्वेशन तो नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir. राइट. Sir, answer 110 meter per second. 110. Yes. 74. That's right. Okay. ये point, not this point. Time taken by object between any two points in its path is same during upward and downward motion. जब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है तो दो पॉइंट के बीच में उतना ही टाइम लगता है. इज इट क्लियर? Yes. राइट. अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे. राइट. एक फोटो बनाते हैं. ये अपवर्ड मोशन और ये डाउनवर्ड मोशन. राइट. Yes. और ये हमारा वो पॉइंट है और यहां पे 7 सेकेंड पे है और इधर कितने टाइम पे है? 15 सेकेंड पे है. अब हम मान लेते हैं ये पॉइंट मान लेते हैं P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q. ये पॉइंट. तो टाइम फ्रॉम P टू Q अगर मैं T लूं तो टाइम फ्रॉम T नॉट ले लो तो टाइम फ्रॉम Q टू P कितना होगा? बोलो, बाकी बच्चे भी बोलो. Yes, sir. T नॉट. P से Q इज विच पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. तो P से Q पे अगर टाइम T नॉट है तो Q टू P भी टाइम T नॉट होगा. ऑल एग्री टू दिस? किसी को डिसएग्रीमेंट हो तो बोलो. नो? ऑल एग्री? तो अब हम टोटल कैलकुलेशन करें तो 7 तो यहां तक, फिर उससे ऊपर T नॉट, फिर वापस आने का T नॉट और ये सब मिला के 15 हो गया. राइट. तो T नॉट इज हाउ मच? 4 seconds. 4 सेकेंड. सो 2T नॉट इज इक्वल टू 8. तो T नॉट इज 4. सो टाइम. सो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी कितना हुआ? 11 सो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी is equal to 7 plus 4 that is 11 second. Right. तो 11 सेकेंड में वो बॉटम से टॉप तक पहुंच गया. एग्रीड ऑल? Yes. किसी को कोई डाउट? नहीं. नाउ वेलोसिटी एट टॉप कितना? वेलोसिटी एट टॉप v इज इक्वल टू 0. u हमें निकालना है, इनिशियल है ना. एंड g कितना है? -10. क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो स्पीड कम होती जा रही होगी तो -10 है. अब इक्वेशन यूज करो. v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. तो 0 इज इक्वल टू u -10 इंटू 11. तो u इज इक्वल टू 110.
तो 110 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने थ्रो किया था। सबको समझ में आया? राइट निपुण? तनुश्री, हर्षित, चैतन्य, समृद्धि, जिया, ओके, गौरी, ओके, राइट। ये पूछते हो तो अच्छा लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप पूछते हो, तो बल्कि अच्छा लगता है। तो मुझे पता लगता है कि और जब एक आदमी कोई पूछता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी को पूछना हो सकता है 2-3 को और पूछना हो और वो शर्म के मारे ना पूछ रहे हो, तो इसलिए पूछ लेना चाहिए। देखो यहां से यहां तक गया, कितना टाइम लगा चैतन्य? 7 सेकेंड। फिर यहां से यहां तक गया तो कितना टाइम हो गया? t0। और यहां से यहां तक का कितना हो गया? ये आ गया 7 + t0। अब ये फिर यहां से वापस आया तो कितना और टाइम ऐड हो जाएगा? प्लस t0। और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? 15। तो 7 + t0 = 15। एंड देखो 7 सेकेंड पे यहां था, 15 पे यहां है, तो यहां से यहां वापस आने में कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में वो पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही नीचे आने का, तो कितना हो गया? 4 और 4। तो एक साइड का टाइम कितना हो गया? 7 + 4, तो दैट इज 11 सेकेंड, राइट? आई फील सबको समझ में आ गया होगा। ओके, राइट। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर डिफिकल्ट नहीं करेंगे तो आगे कभी बढ़ेंगे ही नहीं। अगर मैं आपको यही बोलता रहूं इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक्सेलरेशन 5 है, तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी आप लोग बड़े आराम से निकाल के दे दोगे। ओके, एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दैट every one of you want to do something higher, right? किसी को मेडिकल देना है, किसी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना है, कुछ भी करना है, और उसमें 11th क्लास बहुत मैटर करता है। और 11th क्लास में भी शुरू के ये 3-4 महीने हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम सबको आती है। सो नेवर माइंड इट, बी विद मी, आई एश्योर यू कि ग्रेजुअली सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, एक इंटरेस्ट बिल्ड होगा सब्जेक्ट में, एंड देन यू विल एक्सेल इन द सब्जेक्ट। हर कोई बोलता है फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है, बट अगर प्रॉपरली किया जाए तो नहीं है। सो आवर दिस क्लास नॉट ओनली कवर द CBSE और NCERT syllabus, we also cover the JEE and NEET syllabus, right? तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें होती हैं, और अगर मैं मुश्किल नहीं कराऊंगा तो आप लोग कभी नहीं सीखोगे। तो मेरे ख्याल से सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना है किसी को आज की क्लास में?